Dear students, in this video, this is the last part of the indeterminate form of my video. Indeterminate form, one question I tell you, the form of infinity minus infinity. In the previous video, I have told how to find the limit by using the L'Hopital's rule of the form 0 upon 0, infinity upon infinity, 0 into infinity and infinity minus infinity. In this, the one question I am going to tell you about the infinity minus infinity. This is the question you have to find. First you check x is equal to 0, you put cosec 0 is infinity, cot 0 is also infinity. Now infinity minus infinity you have to change in 0 upon 0 or infinity upon infinity, इसमें change करना है. Otherwise you cannot apply the L'Hopital rule. Therefore you have to change in the form 0 upon 0. How to change? I told earlier that you take the LCM, because for the 0 upon 0 or infinity and infinity there should be numerator and denominator both. But here only numerator is there, denominator as 1, so 1 will not consider as the denominator here. It means we have to take the LCM, but where the LCM? You can change cosec x as 1 upon sin x and cot x as cos x upon sin x. Then LCM is sin x, okay, 1 minus cos x upon sin x. Again you put x is equal to 0 here and you can say that this is the 0 upon 0 form. Now you apply here using L'Hopital rule. What you have to do in the L'Hopital rule? Just differentiate numerator and denominator separately. Do not apply the division rule. In this, actual numerator and actual denominator में division rule नहीं apply करना है एक साथ. If you have suppose any fraction in the numerator or any fraction in the denominator, then you will apply. This is the other matter. Now differentiate. So on differentiating the 1 and cos x, limit x tending to 0, differentiation of 1 is 0 minus differentiation of cos x minus sin x and divided by differentiation of sin x is cos x. As you can see here, this is the sin x upon cos x, limit x tending to 0, sin x upon cos x, and this sin x upon cos x, what you can write? You can write as tan x, and tan x, when you put the value of x, then it will be tan 0 means 0, tan 0 means 0. This is the answer. When you apply the first time, means you have to apply the first time, second time also if you need. Otherwise if you put x is 1, you are not getting the 0 upon 0. This is the answer, means you will get the real value. Now I will tell you the last form of the indeterminate, that is very easy also, but there is some difference. These are the three forms, like 0 to the power 0, infinity to the power 0 and 1 to the power infinity. This is the another type of typical, you cannot say the typical, मतलब जो अभी फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बताया या 0 इंटू इन्फिनिटी बताया, ये थ्री फॉर्म्स भी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आते हैं. If you have the power function like this, limit x tending to 0 fx to the power gx, इस तरह से भी फंक्शन हो सकते हैं, because you have read in the differentiation x to the power x, x to the power sin x differentiation. So taking the log both the sides means applying the log property and then you will solve. Here also you have to apply the log property. अब 0 to the power 0 भाई हो सकता है ये भी 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 रख, x की वैल्यू a सपोज, तो अगर हमने a रखा कोई भी फंक्शन हो और वो 0 हो जाए और ये भी 0 हो सकता है, 0 या एक इन्फिनिटी हो जाए ये 0 हो जाए या ये 1 हो जाए ये इन्फिनिटी हो जाए, तो यू कैन गेट द फॉर्म. बट व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व, ये 3 स्टेप्स है, इनको जरा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा.
कि करना क्या है। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उस एग्जाम्पल में पूरा क्लियर करेंगे, ये फॉर्म क्लियर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव द लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x होल पावर tan 2x, दिस इज द tan x, यहां tan x है और यहां पे sin 2x, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू डू, हाउ टू डू द क्वेश्चन। सिंपल, पहले स्टेप 1 करना है तुम्हें। स्टेप 1 हम इसलिए स्टेप लिखे दे रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो, मतलब पहला स्टेप ये लेना ही है। फर्स्ट यू विल राइट दिस पार्ट विदाउट लिमिट एज y, इसको y लेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू tan x होल पावर sin 2x विदाउट लिमिट। नाउ यू विल टेक log बोथ द साइड्स, अब दोनों तरफ log लेंगे, ये सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप है कि दोनों तरफ log लेंगे, टेकिंग log, ये हर क्वेश्चन में करना है जिस क्वेश्चन में तुम्हें ये इस तरह से आ जाए, टेकिंग log बोथ साइड्स। लेकिन पहले हमने बताया कि एक बार चेक करना जरूरी है, तो इसको चेक करा यदि हमने x इज इक्वल टू 0, तो tan 0 ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, 0 टू दी पावर 0। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग, आई एम डूइंग लाइक दिस इज द नेक्स्ट अदर फॉर्म। नाउ द थर्ड वन, अब log लेंगे तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर हम log लेंगे तो ये sin 2x log के पहले हो जाएगा। एज यू नो द log m टू दी पावर n इज इक्वल टू l log m, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो log y इज इक्वल टू sin 2x log tan x, दिस इज द आफ्टर अप्लाइंग द log, इसमें ध्यान देना ये फॉर्मूला लग रहा है, log m टू दी पावर n, n पहले आ जाएगा l log m। तो नाउ आफ्टर द सेकेंड स्टेप यू विल पुट द लिमिट वॉट एवर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो लिमिट क्वेश्चन में दिया गया है वही आप पुट करेंगे। थर्ड स्टेप में वी पुट लिमिट। अब लिमिट जब भी पुट करते हैं, लिमिट ऑलवेज विद द वेरिएबल, नॉट विद द कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी लिमिट अगर हम यहां लेंगे तो वो लिमिट y के साथ होगी, लिमिट यहां लेंगे बिकॉज इट इज द क्वेश्चन, तो उस लिमिट को हम log के बाद लगा सकते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिट। अब लिमिट ले रहे हैं तो log के बाद डायरेक्टली हम लिमिट लगा देंगे x टेंडिंग टू 0 y। अब देखिए हमने y इज इक्वल टू ये लिया था, ये देखिए y इज इक्वल टू लिया था, यहां पे लिमिट लग गई, इट मींस दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये पूरा ये क्वेश्चन है। अब log एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, अभी इसको बाद में हटाना पड़ेगा, यू हैव टू कैंसिल द log बाय एनी मींस। अब कैसे कैंसिल करेंगे ये अभी हम बताएं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x log tan x, ये दिस इज द क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। अब हमें राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, ये लगा रहेगा log लिमिट x टेंडिंग टू 0 y, दिस इज द इज इक्वल टू। नाउ चेक अगेन व्हाट इज द फॉर्म, क्या फॉर्म है अब ये। अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखें तो sin 0 इज 0, log tan 0 इज 0, तो log 0, व्हाट इज द log 0, इंफिनिटी, log 0 इज इंफिनिटी। तो ये हो गया हमारा, अगर हम वैल्यू रखें तो 0 इंटू इंफिनिटी। अब देखिए ये थर्ड एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज चल रही है, स्टेप्स चल रहे हैं, पहला फॉर्म था 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, सेकेंड था इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, थर्ड जो पावर वाले। तो अब ये देखिए थर्ड से सेकेंड में आ गया, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में आ गया। अब इसको लेकिन हमने कहा ना कि एल हॉस्पिटल यू कैन यूज ओनली व्हेन यू हैव द 0 अपॉन 0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तभी हम यूज कर सकते हैं। नाउ 0 इंटू इंफिनिटी, अर्लियर वीडियो में बताया भी है कि यू हैव टू चेंज
द टर्म विच यू कैन चेंज इजिली, जिसको हम इजिली चेंज कर सकते हो, डिनोमिनेटर में ला सकते हो। तो इसमें किसको हम डिनोमिनेटर में इजिली ला सकते हैं? दिखाई दे रहा है कि log tan x अपॉन कोसेक 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब ये फॉर्म देखिए इजिली, ये अगर हम कोसेक 0 कर दे तो कोसेक 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ गया। इट मीन्स यू कैन अप्लाई नाउ एल हॉपिटल रूल। तो अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो दिस यू हैव टू राइट हियर, लिमिट अब अप्लाई करना है तो डिफरेंशिएट करना है ऊपर नीचे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर 1 अपॉन tan x, पहले किसको करेंगे, log को करेंगे, एंड देन tan x sec स्क्वायर x होल अपॉन डिफरेंशिएट कोसेक 2x। क्या डिफरेंशिएशन आएगा, कोसेक x का जो होता हो वो कर दिए, -2 कोसेक 2x कॉट 2x, इतना आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई पहले कर ले, इसलिए कि सिंप्लीफाई करके फिर बहुत काफी रिड्यूस भी हो जाएगा, नहीं तो अभी बहुत टाइम लगेगा इसमें। क्योंकि अभी भी ये दिस इज द फॉर्म ऑफ, यू कैन से दैट दिस इज द फॉर्म ऑफ x टेंडिंग टू 0। अगर हम रखें तो क्या फॉर्म आ सकता है, अगर एक देखें तो कोसेक 0 चूंकि इन्फिनिटी आ रहा है तो 0 ये 1 इंटू मतलब कि इन्फिनिटी दे देगा, कॉट 0 भी इन्फिनिटी आ रहा है, tan 0 इज 0 सेक स्क्वायर x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, मतलब कि सबको हम cos टू कॉट को साइन और cos में चेंज कर दें। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब इसको हम चेंज करने जा रहे हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो गया tan x, 1 अपॉन tan x को क्या लिख सकते हैं, cot x, यानी cos x अपॉन sin x, ये हो गया हमारा। कोसेक 2x को sin 2x यानी ऊपर ले जा सकते हो, sin 2x हो गया, और cot 2x को tan 2x भी लिख सकते हैं, तो ये tan cot 2x ऊपर जाएगा, तो यू विल गेट tan 2x और होल अपॉन -2, दिस माइनस। नाउ मोर सिंप्लीफाई, जो रिड्यूस हो रहा है मतलब कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, उसे आप कैंसिल कर दीजिए। तो cos x एक कैंसिल हुआ, 1 अपॉन cos x, ये sin x, ये माइनस साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 अपॉन cos x sin x और ये 2 मिल करके आ जाएगा 2 cos x sin x। अभी हमारे ये सब मिल गए। अब ये sin 2x है, इसको tan 2x को लिख सकते हैं sin 2x अपॉन cos 2x, यू कैन राइट दिस। अब देखिए ये क्या बन गया, sin 2x बन गया है, ये पूरा कैंसिल एक sin 2x से आ जाएगा। अब उसको करना की जरूरत नहीं थी, मतलब उसको हम tan 2x ही लिखे रहते तो भी ठीक था, इज इक्वल टू 0। बट क्वेश्चन इज नॉट स्टॉप्ड हियर। वाई, हमें तो हमने बताया क्वेश्चन हमारा क्या है, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 y की। लॉग नहीं होना चाहिए, जब लॉग नहीं होना चाहिए तो अब लॉग को हटाएंगे कैसे, अब ये 0 है यहां पे। तो सिंपल वे, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहे हैं कि यू हैव टू राइट दिस लिमिट x टेंडिंग टू 0 y इज इक्वल टू e टू दी पावर 0। क्या मतलब समझे, इधर से लॉग हटाएंगे और यहां जो भी नंबर लिखा रहेगा उसको e की पावर में कर देंगे, बस दैट इज द आंसर। अब ये चूंकि 0 है तो इज इक्वल टू 1 आ गया, मैंने कि आंसर हमारा क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां 2 लिखा होता तो e की पावर 2 हो जाता, -1 लिखा होता e की पावर -1 और लॉग यहां से हट जाता। दिस इज द मेथड टू कैंसिल द लॉग फ्रॉम, या हम ये कह सकते हैं तो शिफ्ट द लॉग फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, 1/x tan x
लिमिट x टेंडिंग टू 0. हाउ टू डू? पहले तो फॉर्म चेक कर ले. 1/0 इंफिनिटी हो गया और tan 0 0 हो गया, इंफिनिटी टू द पावर 0. नाउ स्टेप 1 क्या करेंगे? पहले लेट करें y इज इक्वल टू 1/x पावर 10x एंड देन टेकिंग log बोथ साइड्स. ओके, तो टेकिंग log बोथ साइड्स. अब ये log y हुआ इज इक्वल टू, हमने बताया था फॉर्मूला, tan x इधर हो जाएगा, फिर log 1/x ऐसे. नाउ पुट द लिमिट बोथ द साइड्स. कौन सी लिमिट्स? दिस लिमिट, ये लिमिट है, इसको जो भी लिमिट लिखो x टेंडिंग टू π/2 लिखाओ तो भी वही करना है, मतलब वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू राइट. देन एंड लिमिट यू विल नॉट राइट विद द log, क्योंकि log एक मतलब log एक वर्ड है, हमें तो लिमिट हमेशा फंक्शन में यानी वेरिएबल में चाहिए, उसकी वैल्यू को वेरिएबल में रखना है. तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 y यू कैन राइट लाइक दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x into log 1/x. this. Now check the form. tan 0 is 0 and 1/0 is infinity, तो यानी log infinity. जब log 0 या कोई भी नंबर, if it is not positive, the for log, as you know the rule property of the log, the number with the log must be greater than 0, not less than 0, not equal to 0 and not infinity. अगर infinity भी है log infinity तो मतलब वो infinity हो गया. ठीक है, अब ये फिर आपका आ गया 0 into infinity. Now I have told already which term you can change is you can take in the denominator easily. तो कौन सा टर्म को ले सकते हैं? tan x को, है ना, क्योंकि यही टर्म आसानी से डिनोमिनेटर में आ जाएगा. दिस इज द टर्म cot x. नाउ चेक x टेंडिंग टू 0, log 0 infinity is infinity upon cot 0 is infinity. Infinity means you can apply L'Hopital rule and then apply the L'Hopital rule. तो क्या बनेगा हमारा डिफरेंशिएशन? You have to differentiate numerator separately and denominator separately. Log 1/x का differentiation क्या होगा? What is the differentiation? Don't do mistake in the differentiation. log 1/x, ब्रैकेट में 1/x है, तो ये 1/1/x ऐसे लिखे, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और x की जगह पे ये पूरा 1/x है, तो 1 तो रहेगा ही, 1 रेसिप्रोकली तो लेना है. लेकिन डोंट स्टॉप हियर, क्योंकि अभी 1/x का भी तो इंटीग्रेशन होना, वो डिफरेंशिएशन होना है. तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x². दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log 1/x. बिकॉज द स्टूडेंट डज मिस्टेक इन द डिफरेंशिएशन, कि वो सोचते हैं कि log 1/x तो 1/x हो गया, उसके बाद उसका भी नहीं करेंगे. अगर मान लीजिए ये भी कर दिया तो 1/x का नहीं किया, तो वहां पे वो गलत हो जाएगा. तो यू शुड बी अलर्ट व्हेन यू डू द डिफरेंशिएशन. cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -cosec²x एंड देन सिंप्लीफाई. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है देख सकते हैं. log लिमिट x टेंडिंग टू 0 y इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0. अब ये माइनस साइन मिलके प्लस, दिस x विल गो इन द न्यूमरेटर और x एंड 1x विल बी कैंसिल, तो 1/x होगा. और ये माइनस वो कोसेक स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर x इन द न्यूमरेटर. Now, can you write the sin x/x is equal to 1? Yes. हम फिर से इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. लेफ्ट x टेंडिंग टू 0 हमने लिया एक sin x अलग इंटू लिमिट
x tending to 0 sin x upon x. That you can write because this is the property of the limit. हम लिमिट को किसी भी वेरिएबल के साथ ले जा सकते हैं, वेरिएबल में अलग अलग लिख सकते हैं, पावर में ले जा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 in the trigonometry by property of the trigonometry. So this is equal to limit x tending to 0 sin x into 1 is proved. Now you put the value of x. So log 1 limit x tending to 0 y is equal to sin 0 is 0. Again you get the same answer because it is 0. तो log हटाइए, लिमिट लिखिए, y लिखिए और e टू द पावर 0 दिस इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर. थैंक यू.